آج بھی وہ صورتحال وہی موجود ہے جو مجدد الفسانی کے دور میں تھا کہ جاہل صوفیہ اور نفس پرست پیر جو اسلام کے لبادہ اوڑھ کر کے اور سجادہ نشین بن کر کے بیٹھے ہیں اور کام وہی کر رہے ہیں جو اس کا نفس چاہتا ہے، کام وہی کرتے ہیں جو اس کا دل چاہتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتے ہیں جو دین چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سید صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، جو چاہے گناہ کرے ان کے لیے معاف ہے، جنت میں تو لے ہی کے چلے جائیں گے۔ یہ خواب و خیال اپنے دل و دماغ سے نکال کے باہر کر دیجیے، اور کم سے کم ہر شخص کو چاہیے کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی ایک کتاب مکتوبات امام ربانی کو پڑھیں کہ کس طریقے سے انہیں جاہل پیروں اور صوفی جو بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا دار مولویوں کے خلاف جس طریقے سے انہیں قدم اٹھایا تھا اور قلم اٹھایا تھا، آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی اور کس طریقے سے دین کے اصلی چہرے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب الجلال اپنے کلام کریم میں ارشاد فرما رہا ہے والذین آتیناہم درجات، اور جنہیں علم کی دولت دی گئی ان کے درجات بہت بلند و بالا کر دیے گئے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اگلے جمعہ علم حیات اور علم نجوم یا علم جفر وغیرہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کی زندگی پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن عالم اسلام کی دو عظیم ہستیاں، ان میں ایک امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان۔ یہ عالم اسلام کی دو عظیم ہستیاں ہیں کہ جن پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور اگر موقع ملا تو اعلیٰ حضرت پر گفتگو ہوگی، ورنہ پھر کسی موقع پر آج امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں حافظ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، شیخ التفسیر بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں اور ولی بھی ہوتے ہیں۔ ہر دور میں آپ کو حافظ مل جائیں گے، اور عمومی طور پر ہر گاؤں میں آپ کو حافظ مل جائیں گے۔ عالم ہر گاؤں میں تو نہیں، لیکن کہیں کہیں ضرور آپ کو مل جائیں گے۔ مفتی پورے ضلع میں کہیں کہیں لوگ مل جائیں گے۔ شیخ الحدیث یہ بھی مشکل سے پورے ضلع میں آپ کو ملیں گے۔ شیخ التفسیر کا بھی یہی حال ہے۔ صوفی، درویش، پیر، بزرگ، یہ حضرات بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گے۔ لیکن ایک منصب ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے، اور یہ مجدد آپ کو ہر علاقے میں یا ہر وقت نہیں بلکہ 100 سال کے بعد ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے۔ 100 سال جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صدی میں کئی مجدد ہوں، لیکن ہوں گے تو 100 سال کے بعد ہی، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل سنۃ
من یجدد لہا دینہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایک بندے کو بھیجتا ہے جو دین میں خرابی پیدا ہو گئی ہو اس کو دور کرتا ہے اور دین کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ مجددوں کی فہرست ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہی کڑیوں میں سے ایک کڑی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ان کی ذات اور امام اہل سنت امام احمد رضا کی ذات دونوں میں کس طریقے سے مطابقت پائی جاتی ہے، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ ان کا نام بھی احمد ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام بھی احمد ہے، یعنی 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کی ولادت اور 14 شوال کو امام ربانی مجدد الفسانی کی ولادت، یعنی دونوں کے ولادت کا مہینہ ایک ہے۔ وصال جب ہوتا ہے تو 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے اور 28 صفر کو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ تمام علوم دینیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد گوالیار کے جیل میں جب پہنچتے ہیں تو امام ربانی مجدد الفسانی نے حفظ اس جیل کے اندر کیا تھا، یعنی پڑھنے کے بعد فراغت حاصل کرنے کے بعد، اور اعلیٰ حضرت بھی اپنے تمام علوم و فنون سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کسی نے انہیں حافظ لکھ دیا، تو 1 مہینے کے اندر صرف 1 گھنٹہ پڑھتے تھے اور 1 مہینے میں جا کر کے وہ بھی حافظ قرآن بنتے تھے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ایسی مماثلت ہے اور مناسبت ہے کہ جن کے بارے میں مجدد الفسانی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں ان کے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں، شیخ احمد آفتاب اند مثل ماں ہزار ہا سیار گاہ در او گم شد۔ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی یہ آفتاب ہے، سورج کی طرح ہے، اور مجھ جیسے ہزاروں ستارے ان کے اندر گم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ان کے پیر خواجہ باقی باللہ۔ تو جن کے پیر کا یہ کہنا ہو کہ مجدد الفسانی اپنے وقت کا سورج ہے، اپنے وقت کا آفتاب ہے، اور ہم جیسے ستارے اس کے دامن میں یا اس کے روشنی میں ہم جیسے ستارے گم ہیں، تو پھر ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں اپنے پیر سے مرید ہونے کے لیے، تو جب وہ مرید ہوتے ہیں ان کے بعد پھر ان کے پیر و مرشد سے لوگوں نے پوچھا تھا پہلے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب آپ سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا یہ دل میں خدشہ تھا کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تو میرے لیے لایا کیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا، لیکن اب وہ ذات مل گئی ہے۔ کل بروز محشر اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے آل رسول بتاؤ تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ تو ان کے پیر و مرشد سید آل رسول مارہروی کس طرح اعلیٰ حضرت کو چاہتے تھے اور کتنی محبت فرماتے تھے، ان کے اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے مقام اور مرتبے کو خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شیخ احمد تو سورج ہے اور ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے اندر گم ہیں۔ تو یہ مقام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا۔
तजदीदी कारनामे, दीन में जो बिगाड़ पैदा हो जाता है, खुराफात शामिल हो जाते हैं, नफ्स परस्ती शामिल हो जाती है, बेहयाइयाँ और गुमराहियाँ और कुफ्र और शिर्क जब मुसलमानों के अंदर दाखिल होने लगती है, तो ऐसे माहौल में जब 100 साल पूरा होता है तो अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को भेजता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी का तजदीदी कारनामों में 3 काम सबसे अहम और सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वैसे तो उस दौर में बुराइयां बहुत सारी थी और हर शोबे में उन्होंने काम किया है और तजदीदी काम कर करके दीन के सही चेहरे को दुनिया वालों के सामने पेश किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम काम था उनका और सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल थी जो चीज़, वो थी 3 चीज़ें। उसमें पहली चीज़ तो ये थी, जो बड़े बड़े बादशाह वक्त थे, उमराए सल्तनत थे, उनके सामने इन्होंने सीना सिपर हो करके और उनसे टक्कर लेने की जसारत की थी। क्योंकि बादशाह जो होते हैं दौलत के नशे में, फौज के नशे में, हुकूमत के नशे में, तख्ते के नशे में, कुर्सी के नशे में, इन तमाम चीज़ों की दौलत की बुनियाद पर वो हर चीज़ और हर गुनाह करने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि आज अगर तख्त ताज और कुर्सी हमारे हाथ में है, आज अगर मनसब हमारे हाथ में है, तो जो चाहे हम कर ले, हमसे कोई रोकने वाला नहीं है, हमको कोई बोलने वाला नहीं है, हमको कोई टोकने वाला नहीं है। अकबर बादशाह का दौर था, कुफ्र और शिर्क को, सब चीज़ों को वो मिला करके चलने की वो कोशिश कर रहा था, दीन इस्लाम को बदल करके दीन इलाही नाम रखने की कोशिश कर रहा था। तो बादशाहों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई थी तो मुजद्दिद अल-फसानी की ज़ात थी। और दूसरा उनका अहम किरदार क्या था, जाहिल पीर और नफ्स परस्त सूफ़ी, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया था। और तीसरा उनका जो अहम कारनामा था वो उलमाए सू, दुनियादार मौलवी, पैसे के लालच में अपना दीन और धर्म को बेचने वाले उलमा और हुफ़ाज़ और कुर्रा और मौलवियों की तादाद थी जिनके खिलाफ उन्होंने कदम उठाया था। ये 3 गिरोह थे कि जिन बुनियादी तौर पर जिनके खिलाफ मुजद्दिद अल-फसानी ने कदम उठाया था। बादशाहों के खिलाफ जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो बादशाह ने उसे जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाल दिया तो वहाँ पर भी उन्होंने तालीम और ताल्लुम को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जो कैदी थे उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो जेल से निकले थे तो अपने वक्त के आलिम बन करके निकल रहे थे, कोई हाफिज़ कुरान बन के निकल रहा था, कोई मुबल्लिग इस्लाम बन करके निकल रहा था, कोई मुजाहिद इस्लाम बन के निकल रहा था। गोया कि वो जेल से बाहर थे तो भी दीन की खिदमत कर रहे थे, और जब जेल के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ भी दीन की खिदमत की। जितने कैदी थे, जितने कातिल थे, जितने डाकू थे और जितने कज़्ज़ाब थे, जितने लुटेरे थे, जब मुजद्दिद अल-फसानी की सोहबत में आते हैं तो कोई आलिम रब्बानी बनता है, कोई वली कामिल बनता है, कोई हाफिज़ कुरान बनता है, कोई मुबल्लिग इस्लाम बनता है, कोई इस्लाम का सिपाही बनता है। और जब वो जेल से तमाम लोग निकलते हैं तो अतराफ़ व अकनाफ़ में फैल करके इस्लाम का बोलबाला फरमाते हैं और कुफ्र को तहे तेग करने के लिए मुकम्मल तौर पर कोशां रहते हैं। तो बादशाहों के खिलाफ बोलना ये बड़ी ही जुर्रतमंदी का काम है, इसलिए कि बादशाह जो होते हैं वो अपने वक्त के किसी नमरूद और फिरौन से कम नहीं होते हैं अगर वो दुनियादार हो जाए तो। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह का अगर डर है तो फिर ऐसे मुनसिफ पसंद बादशाह भी गुजरे हैं कि अपने वक्त के वली कामिल भी हुए हैं। लेकिन उमूमी तौर पर अगर वो दुनियादार हो जाए, दौलत के नशे में चूर हो जाए, तो किसी नमरूद और फिरौन से वो फिर कम नहीं होता है। मामूली नशे, मामूली मनसब पर भी अगर कोई फाइज हो, मामूली कुर्सी भी अगर वो फाइज हो जाए, मामूली किसी मनसब पर भी अगर वो फाइज हो जाए, और अगर वो दुनियादार है, अगर पैसे का भिखारी है, अगर दौलत का भूखा है, तो फिर वो अपने दौर का, उस ज़माने का, फिर वो फिरौन बन जाता है, वो नमरूद बन जाता है। फिर वो गुनाह और बुराई को फैलाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ता। जाहिर सी बात है, जब बादशाह अपने वक्त का गुमराह हो जाए
तो उसके जो मुशीर होते हैं, उसके जो वज़रा होते हैं, उसके जो उमरा होते हैं, उसके बगल में जो बैठने वाले सूफ़ी और मुल्ला होते हैं, उन लोगों का हाल क्या होता है। वो उसकी जी हुजूरी में लग जाते हैं, वो उसकी चापलूसी में लग जाते हैं, वो उसको खुश करने के लिए ऐसी ही बात करते हैं जो उन्हें खुश कर दे, चाहे वो दीन के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो मज़हब के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो शरीयत का ख़िलाफ़ हो, उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती है। उसे परवाह होती है तो बादशाह की परवाह होती है, उसे परवाह होती है तो अपने कुर्सी की परवाह होती है, उन्हें परवाह होती है तो अपने मनसब का परवाह होती है, उन्हें परवाह होती है तो बादशाह से मिलने वाले उन वज़ाइफ और उन पैसों और उन दौलतों की परवाह होती है जिससे उसका पेट पल रहा होता है और इसका घर बार उससे चल रहा होता है। अकबर बादशाह को भी कुछ ऐसे मौलवी मिल गए थे और कुछ ऐसे सूफ़ी मिल गए थे जिन्होंने मशवरा दिया था कि 1000 साल गुजर चुका है दीन इस्लाम को आए हुए, अब दीन में कुछ तब्दीली होनी चाहिए, उसका नाम दीन इलाही रखना चाहिए। इस वक्त के सबसे बड़े बादशाह आप हैं, आपका नाम अकबर है, अल्लाह का भी नाम अकबर है, कुछ मील जोल खा रहा है, लिहाजा आप दीन इलाही का ऐलान कर दीजिए। लेकिन उस दौर में भी मुजद्दिद अल-फ़सानी डट करके खड़े होते हैं और उस बादशाहों के खिलाफ भी कलम उठाते हैं और उन सूफियों के खिलाफ भी कलम उठाते हैं और उन पीरों के खिलाफ भी कलम उठाते हैं और उस उलमाए सू के खिलाफ भी कलम उठाते हैं और दुनियादार मौलवियों के खिलाफ भी कलम उठाते हैं जो बादशाह के बगल में कुर्सियों पर बैठ करके दीन का सौदा कर रहे होते हैं, इस्लाम का सौदा कर रहे होते हैं, अपने मजहब का खून कर रहे होते हैं। उन सब के खिलाफ उन्होंने कलम उठाया था और सबके खिलाफ रद्द बलीग फरमाया था और दीन का जो सही चेहरा था उसे दुनिया वालों के सामने पेश किया था। उस दौर के उलमा को का ये हाल था, वो ये समझ रहे थे अगर हम बादशाह के खिलाफ खड़े होंगे तो फिर हमारा वजीफा बंद हो जाएगा। हम अगर इस बादशाह को बुराई से रोकने की अगर कोशिश करेंगे तो हमारी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अगर हम बादशाह के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन सदनी कर दी जाए। अगर हम बादशाह के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शहर बदर कर दिया जाए। आज के दौर के मौलवियों का भी ये हाल है। कुछ लोग ये सोचते हैं अगर हम सही बात बोलेंगे तो कहीं हमें मदरसे से ना निकाल दिया जाए, अगर हम सही बात बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें इमामत से निकाल दिया जाए, अगर हम हक बात बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तनख्वाह बंद कर दी जाए। इसलिए लोगों की खुशामदी वाली तकरीर करते रहो, उनको जो खुश करे वही तकरीर करते रहो। लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी की तकरीर, मुजद्दिद अल-फ़सानी के मकतूबात, उनकी तहरीरों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि आदमी किस तरीके से होना चाहिए। जो दीन के रास्ते पर चल रहा हो, जो मजहब के रास्ते पर चल रहा हो, तो अल्लाह के सिवा उस पर किसी और पर भरोसा नहीं होना चाहिए। मेहनत करे, मजदूरी करे, मुशक्कत करे, परेशानियों को उठाए, लेकिन तवक्कुल होनी चाहिए तो अल्लाह पर होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए तो अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। नाम लेने से अगर हम मुजद्दिद अल-फ़सानी का नाम लें और पूरी ज़िंदगी उनके खिलाफ हम अगर चलते रहे तो ये नाम लेना कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। उनकी एक किताब कम से कम हर शख्स को पढ़ना चाहिए, मकतूबात इमाम रब्बानी, कि उनकी तालीमात क्या है, किस तरीके से उन्होंने चाहे वक्त का बादशाह हो तो उसके खिलाफ भी बोलने के लिए वो नहीं चूके। वक्त का अगर सूफी भी हो, अगर पीर भी बना हुआ हो, अगर शरीयत के खिलाफ अगर वो चल रहा है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए एक लम्हा भी उन्होंने दरेग नहीं किया। बल्कि एक वाक़या लिखा है, किताब है ज़ुब्दतुल मक़ामात, उसमें एक वाक़या लिखा है कि एक आदमी इमाम रब्बानी की किताब अल मकतूबात को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उन्होंने उसमें एक मसला आ गया जो उनको दिल कबूल नहीं किया। उन्होंने उठा करके उसे फेंक दिया। जाहिर सी बात है, शरीयत के मसाइल जो हमारे तबीयत के ख़िलाफ़ है तो वो हम कब उसे कबूल करेंगे? कबूल करना तो हमारी फितरत में है नहीं कि दीन ये कह रहा है हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो दीन के रास्ते को तो हम छोड़ ही देंगे। तो उसी तरीके से जो बात इमाम रब्बानी ने लिखी थी और वो मामला था हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से, तो उन्होंने क्या किया कि उसे उठा करके फेंक दिया, इसलिए कि उस बात को उनके दिल ने कबूल नहीं किया। रात में जब वो सोते हैं ख्वाब में मुजद्दिद अल-फ़सानी, और इत्तेफाक ऐसा था कि वो आदमी जिसने मुजद्दिद अल-फ़सानी की किताब को उठा करके फेंक दिया था वो सैयद भी थे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी जब ख्वाब में आते हैं उसके दोनों कानों को पकड़ करके और बोलते हैं कि चल तुम्हें अल्लाह के रसूल की बारगाह में ले चलते हैं।
तुम क्या ये समझते हो कि मैंने जो ये किताब लिखी है क्या ये हमारा ज़ाती नज़रिया है? ये जो मैंने किताब लिखी है क्या मैंने अपने मन से लिखा है? क्या मैंने इसे अपने तरफ से लिखा है? नहीं, बल्कि इस किताब में मैंने वही लिखा है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है, जो शरीयत है, जो कुरान है, जो हदीस है, उसी की रोशनी में मैंने किताब लिखी है। अगर इसमें एक चीज़ भी अगर गलत हो तो फिर मैं चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। दोनों कान पकड़ करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक मैदान है, हजरत अली भी सामने मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत अली से, ऐ अली ये तुम्हारी औलाद है इसलिए तुम इसका फैसला करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजद्दिद अल-फ़सानी से फरमाया कि ये मेरी औलाद है, तुम इसे एक थप्पड़ लगाओ। इसलिए कि जो किताब ये जो लिखी गई है ये इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है और इसका दिल इसको गवारा नहीं कर रहा था, इसलिए ये सैयद ज़्यादा है, ये मेरी औलाद में से है। ऐ मुजद्दिद अल-फ़सानी इसको तुम थप्पड़ लगाओ। जब एक थप्पड़ उन्होंने लगाया उसके बाद फरमाया कि अब वो दिल में जो खुराफात थे वो ख़त्म हुए या नहीं? उन्होंने कहा ख़त्म हो गया। हज़रत अली ने फरमाया नहीं, अभी कुछ बाकी है, अभी इसको एक थप्पड़ और लगाओ। एक थप्पड़ वो और लगाते हैं, तब जा कर के वो ख़त्म होता है मामला। मुजद्दिद अल-फ़सानी से फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अहमद सरहिंदी तुम्हारे एक दो थप्पड़ ने इसके दिल की सफाई कर दी। तो ये होती है शरीयत। शरीयत के दायरे में कोई पीर हो, चाहे कोई फ़कीर हो, कोई आलिम हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, कसे बासद कोई भी आ जाए तो फिर वो शरीयत की तलवार से बच नहीं पाता है, चाहे वो जो भी हो। हम ये समझते हैं ये सैयद साहब है, ये पीर साहब है, जो चाहे गुनाह करें इनके लिए माफ़ है, जन्नत में तो ले ही के चले जाएंगे। ये ख्वाब व ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल के बाहर कर दीजिए। और कम से कम हर शख्स को चाहिए कि मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी की एक किताब मकतूबात इमाम रब्बानी को पढ़ें कि किस तरीके से उन्हें जाहिल पीरों और सूफ़ी जो बन करके बैठे हुए थे और दुनियादार मौलवियों के खिलाफ जिस तरीके से उन्हें कदम उठाया था और कलम उठाया था, आप उसको पढ़ने के बाद आपको होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम की खिदमत की थी और किस तरीके से दीन के असली चेहरे को दुनिया वालों के सामने पेश किया था। आज भी वो सूरत हाल वही मौजूद है जो मुजद्दिद अल-फ़सानी के दौर में था कि जाहिल सूफिया और नफ्स परस्त पीर जो इस्लाम के लिबादा ओढ़ करके और सज्जादा नशीब बन करके बैठे हैं और काम वही कर रहे हैं जो उसका नफ्स चाहता है, काम वही करते हैं जो उसका दिल चाहता है। वो काम करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं जो दीन चाहता है, जो कुरान चाहता है, जो इस्लाम चाहता है। और कुछ मौलवी उन पीरों को खुश करने के लिए उसके आगे पीछे होते रहते हैं। कम से कम उस मौलवियों को भी पढ़ना चाहिए एक बार मकतूबात इमाम रब्बानी। सिर्फ नाम लेने से नहीं होता है, उनकी तालीमात को पढ़ना चाहिए, उनके किरदार को देखना चाहिए और उनकी किताबों का मुताला करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने दीन का काम किया था और किस तरीके से गुमराह फिरकों को और बददीनत लोगों को और दीन के नाम पर जो लूट रहे थे और खा रहे थे उन लोगों का किस तरीके से उन्हें पीड़ा कमा किया था। उनको पढ़ना चाहिए। मकतूबात इमाम रब्बानी को हर शख्स को एक बार पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें इमाम रब्बानी ने किस तरीके से जालिम बादशाहों के खिलाफ और नफ्स परस्त पीर और मौलवियों के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से कलम उठाया था। और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और ये भी फरमाया है कि जब सूफिया का कश्फ और उलमाए कराम जो उलमाए अहले सुन्नत है उनके नज़रियात में जब तजाद हो जाए, एक दूसरे से टकराव हो जाए, तो सूफिया के कश्फ को छोड़ करके उलमाए रब्बानियीन जो कुरान और हदीस के मसले का इस्तेमाल करते हैं, अकायदे अहले सुन्नत हैं, उन अकायदे अहले सुन्नत को तरजीह दे करके और सूफिया के कश्फ को उसको अलग कर दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, अब्दुल रहमान जामी जैसे लोग और मुहिद्दीन इब्ने अरबी जैसे लोगों के चीज़ों को और उनके कश्फ के चीज़ों को इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा इसको छोड़ दिया जाए। उनसे तसामो हुआ है, लेकिन जो उलमाए अहले सुन्नत कुरान और हदीस की रोशनी में अकायदे इस्लाम है, अकायदे अहले सुन्नत है, उस पर जो उन्होंने किताबें लिखी है उसको तरजीह दी जाए और उस पर अमल किया जाए। और जो कश्फ के ज़रिए से, जो करामात के ज़रिए से, जो अपने रूहानी तसर्रुफात की बुनियाद पर जो कवायद और उसूल और ज़ाब्ता बना रहे हैं उनको बरतरफ करके जो उलमाए अहले सुन्नत उलमाए रब्बानी ने कुरान और हदीस से जो मसले का इस्तेमाल किया है उसी पर अमल करना चाहिए, उसी पर अपने आप को चलाने की कोशिश करनी चाहिए।